start the very basic concept of physics, that is unit and measurement. यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी we have to study about that is your unit number 1. इसके अंदर हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी स्टडी करनी पड़ेगी जो कि हमारी all over the physics throughout the 10 units in 11th and throughout the complete 10 units in 12th. This is going to be very helpful to everyone. That's why we are going to start from the very basic into the online classes. That is, first of all, we have to know the types of units. Types of units. अब तक हमने पढ़ा है basically units are basically of two types. अरे are you audible? Is it audible to everyone? Okay. I mean you are audible. You are getting my voice? Okay. Now types of units हमने study करनी है. Basically अब तक हमने पढ़ा है there are basically two types of units. One is SI system and second one is CGS system. Now we will study further two more units. That is called MKS system and fourth one is called FPS system. अब देखो first unit जो है हमारी that is called in terms of SI system. Second in terms of CGS system. Third in terms of MKS system. And fourth one in terms of FPS system. There are basically four types of units. SI system के अंदर हम मास को कैसे मेजर करेंगे, लेंथ को कैसे मेजर करेंगे और टाइम को कैसे मेजर करेंगे. In terms of SI system, I think it is visible to everyone. Moreover, in terms of SI system, मास की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम. लेंथ की यूनिट क्या होगी? मीटर. टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकंड. Secondly, in case of CGS system, लेंथ की यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर. मास की यूनिट क्या होगी? ग्राम. एंड टाइम की यूनिट आगे क्या होगी? सेकंड. Moreover, in terms of MKS system, मास की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम. लेंथ की यूनिट क्या होगी? मीटर. एंड टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकंड. एंड लास्ट वन इन केस ऑफ FPS system, लेंथ की यूनिट क्या होगी? F stands for foot, P stands for pound and pound is the unit of mass and S stands for second. But now these two systems, one is FPS system. ये कह रहे हैं वॉइस क्लियर नहीं आ रही, गूंज रही है, तो थोड़ा सा तो इसको और आगे कर लो और वॉइस को थोड़ा स्लो बोलो, स्लो स्लो. One is called FPS system and another one is called MKS system. अब देखो भाई, FPS system and MKS system, these two systems are now obsolete. Obsolete का मतलब क्या है? Now these days these two systems are not going to be used because these are the oldest system of unit for measuring any physical quantity. Now these days only there are two systems
which are going to be used to measure any physical quantity. One is SI system and second one is CGS system. SI बोले तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम एंड CGS बोले तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। ये आपकी बड़ी क्वांटिटी को मेजर, बड़ी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इन केस ऑफ MKS सिस्टम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SI सिस्टम एंड MKS सिस्टम? What is the difference between SI system and MKS system rather than both have similar units for their measurement? There is a bigger difference between SI system. It is far better than MKS system because of due to the following reasons. First reason क्या होगा? Why it is far better than MKS system? Because SI system is universally acceptable. It is universally acceptable, applicable system. Second one, SI system is the coherent system of unit. Coherent system of unit. Third one, SI system is the rational system of unit. Fourth one, SI system is the metric system of unit. Means because of due to these four characteristics, it is better than MKS system of units. Is it clear? Hope so. It is clear to everyone. तो ये था आपका types of system of units. Now next topic we are going to discuss what are the multiples and submultiples of various prefixes. Now we are going to discuss submultiples and multiples of various prefixes. अब देखो भाई, मल्टीपल क्या होते हैं, सबमल्टीपल क्या होते हैं, अलग अलग प्रीफिक्सेस के लिए दैट यू हैव टू नो अबाउट दिस। अब यहां से देखते हैं हम सबसे पहले प्रीफिक्सेस, सबसे पहले हम देखते हैं प्रीफिक्सेस के बारे में। अब प्रीफिक्सेस के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो उनके मल्टीपल क्या होंगे और सब मल्टीपल क्या होंगे। यहाँ प्रीफिक्सेस के अंदर मल्टीपल्स क्या होंगे। हाँ जी हिमांशु जी, सुनाई दे रहा है आपको? Is it clear? What are the multiples? हिमांशी, गुड़िया, दिखाई दे रहा आपको? Are you able to hear my voice? Okay, see on the board. First of all, अगर in case of submultiples में बात करता हूँ, तो एक आपके यहाँ आपकी टर्म डेसी, तो डेसी का सबमल्टीपल्स क्या होगा? अगर डेसी जहां दिखाई दे तो वहां हम यूज करेंगे 10 रेज़ टू द पावर -1। डेसी की क्या यूज करेंगे? 10 की पावर -1। अगर आता है सेंटी, सेंटी की जगह हम यूज करेंगे, अगर प्रीफिक्स सेंटी आता है तो उसकी जगह यूज करेंगे 10 रेज़ टू द पावर -2। अगर थर्ड
वन, अगर आपको मिली आता है मिली तो उसकी जगह हम यूज करेंगे 10 रेज़ टू द पावर -3। फोर्थ, अगर माइक्रो आता है माइक्रो तो उसकी जगह यूज करेंगे 10 रेज़ टू द पावर -6। कितनी चीज समझ में आई है? फिफ्थ, अगर नैनो आता है उसकी जगह यूज करेंगे 10 की पावर -9 सब मल्टीपल। अगर पिको आता है उसकी जगह यूज करेंगे 10 रेज़ टू द पावर -12। अगर फर्मी आता है या फेम्टो आता है उसकी जगह यूज करेंगे 10 रेज़ टू द पावर -15। और अगर ऑटो आता है उसकी जगह यूज करेंगे 10 रेज़ टू द पावर -18। Is it clear to everyone? Now, moreover, अगर मल्टीपल्स की बात करते हैं तो मल्टीपल्स के अंदर हम यूज करेंगे डेका। अगर मेरा डेका आता है तो मैं क्या यूज करूंगा 10 रेज़ टू द पावर 1। अगर हेक्टो आता है तो 10 रेज़ टू द पावर 2। I think hope so it is clear to everyone। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए what I want to say। अगर आता है किलो के अंदर हम क्या यूज करेंगे 10 रेज़ टू द पावर 3। फिर अगर मेगा आ जाए मेगा के अंदर क्या यूज करेंगे 10 रेज़ टू द पावर 6। फिर अगर गीगा आ जाए गीगा प्रीफिक्सेस के अंदर तो हम क्या यूज करेंगे 10 रेज़ टू द पावर 9। गीगा के अलावा और क्या आ सकता है टेरा। अगर टेरा आ जाए यूज करेंगे 10 रेज़ टू द पावर 12। और भी कुछ होता है? हाँ जी, अगर बीटा आ जाए then we will use 10 raised to the power 15। Are you getting my voice? And last one, अगर hexa आता है then we will use 10 raised to the power 18। So these are the multiple sets of multiples which we are going to use into our whole syllabus of 11th as well as 12th class। Hope so you are getting my point what I want to say। अरे सबको आ रही समझ में? Everybody is getting? Is it audible to everyone? Okay। हाँ जी, जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका वो आता है फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है भाई? These are the physical quantities। These are the physical quantities। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है that is physical quantities।
फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? These are those quantities which can be defined, which can be defined, which can be expressed, which can be measured, and which have some physical significance. अरे बच्चों क्या बताया मैंने? Physical quantities are those quantities which can be defined, which can be expressed, which can be measured, and which has some physical significance. जिसको मैं define कर सकता हूँ, जिसको मैं express कर सकता हूँ, जिसको मैं measure कर सकता हूँ, और जिसकी society के अंदर कोई physical importance हो. For example, आप ले सकते हो वर्क इज ए फिजिकल क्वांटिटी. कैसे? वर्क को मैं फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क को मैं डिफाइन कर सकता हूं. क्या? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. इसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं. क्या? W is equal to F vector dot S vector या F क्रॉस S. मेजर कर सकता हूं इसको मैं. कितना? अगर मेरा फोर्स 5 न्यूटन है, मेरी डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर है, तो मेरा जो वर्क हो जाएगा वो 5 into 3 15. And we all know the unit of work is joule. And physical significance क्या है? Physical significance क्या होती है? Work and energy are interrelated to each other. Work और energy जो है वो क्या है? Work and energy are interrelated to each other. Are you ready what I am saying? Work can be converted into energy, energy can be converted into work. अगर मैं बोल रहा हूं तो I need energy, और ये एनर्जी की वजह से बोल रहा हूं तो क्या हो रहा है? वर्क है. Is it clear? Work and energy are interrelated to each other and both have the same unit, that is joule. Is it clear to everyone? Okay. उसके बाद आता है physical quantities के types. में कितने टाइप की होती है physical quantity? Can anybody tell me how many types of physical quantities are there? The physical quantities, please see on the board. Physical quantities are basically categorized into two types. Physical quantities are basically categorized into two types. First one, heading डालो, types of physical quantities. Physical quantities are basically of two types, but somewhere it is given to be of three types. कई जगह आपको दिखाई देगी three types, but basically जो mostly usable होती हैं वो होती हैं two types. कौन कौन सी? First one जो है that is
called fundamental quantity. Fundamental quantity. Fundamental quantity का दूसरा नाम क्या है? That is called basic quantity. Is it clear? Second जो है that is called derived quantities. कितनी बात आ रही समझ में? एंड थर्ड जो है that is supplementary quantities. अब देखो भाई, फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होंगी उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स. जो डिराइव्ड क्वांटिटी है उनकी यूनिट्स को क्या बोलेंगे? डिराइव्ड यूनिट्स. जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट्स को क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री यूनिट्स. नाउ I am going to discussing all the quantities one by one. First of all, fundamental quantities क्या होती है बच्चों? These are those quantities. These are those quantities which are fundamental in nature, which are basic in nature. जो basic quantity होती हैं उन्हीं को बोलते हैं fundamental quantities. Is it clear? ये होती कितनी हैं? These are 7 in numbers that we will study ahead. थोड़ी देर बाद इनको पढ़ेंगे. Next are the fundamental units. First of all हम definition बताने जा रहे हैं. Fundamental units क्या होती हैं? These are those units which are derived with the help of fundamental quantities. These are those units which are derived with the help of fundamental quantity are called fundamental units. For example, mass क्या है? It is a fundamental quantity. और जो इसकी fundamental unit होगी वो क्या होगी? किलोग्राम. Derived quantities के ऊपर आते हैं. Derived quantity क्या होती है? These are those quantities which are derived with the help of fundamental quantities. These are those quantities which are derived with the help of fundamental quantities. इनको क्या बोलेंगे? Derived quantities. और derived units क्या होंगी? These are those units. These are those units which are derived with the help of derived quantities. उनको क्या बोलेंगे? Derived units. Again, I am repeating. Derived units क्या होंगी? These are those units which are derived with the help of derived quantities. Are called derived units. Next one are the supplementary quantities. Supplementary quantities are basically 2 in numbers. One क्या है? That is called plane angle, and second one that is called solid angle. Solid angle and plane angle. There are basically only 2 types of supplementary quantities. They are somewhere considered and somewhere it is not considered. Solid angle and plane angle are the supplementary quantities. और इनकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? रेडियन एंड स्टीरेडियन. सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की जो यूनिट्स होंगी वो क्या होगी? रेडियन एंड स्टीरेडियन. Is it clear? Hope so you are getting what I am saying. Now one by one we will discuss about the
तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती हैं? दीज आर बेसिकली 7 इन नंबर्स। कितनी होती हैं? 7 इन नंबर्स। कौन कौन सी होती हैं? वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होती है मास। क्या होती है? मास। सेकंड होती है लेंथ। क्या होती है? लेंथ। थर्ड होती है टाइम। फोर्थ क्या होती है? टेम्परेचर। फिफ्थ क्या होती है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सिक्स्थ क्या होती है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एंड सेवंथ क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट। There are basically 7 basic quantities in nature, 7 fundamental quantities in nature। और जो हम इनकी यूनिट्स को डिफाइन करेंगे वो यूनिट्स कौन सी होंगी? Those units would be SI system of units। मैंने आपको बताया SI system why it is better than other system of units, because why SI system is better for other system instead of another system of units, because it is universally applicable, it is a coherent system of units, it is a rational system of units, it is a metric system of units, and there are so many other characteristics of the SI system, like as in case of SI system, the unit of work is joule, but in case of SI system the unit of energy is in calorie, work is in joule, or energy unit in kilowatt hour, or electron volt. There are so many units that are going to be there distributed in case of MKS system, but in all over SI system says that the SI unit of work is joule. That is why it is universally applicable system of units. इसलिए हम SI system को डिफाइन करेंगे। जो मेरी फर्स्ट क्वांटिटी है that is called mass, और जो मास की यूनिट होगी that is SI system के अंदर किलोग्राम। सेकंड जो है that is length, और जो लेंथ की यूनिट होगी SI सिस्टम में, यहाँ लिख देता हूँ कौन सा सिस्टम है? SI सिस्टम। SI सिस्टम के अंदर लेंथ की जो यूनिट होगी that is मीटर। थर्ड वन क्या है? टाइम। तो टाइम की जो SI सिस्टम के अंदर यूनिट होगी that is सेकंड। फोर्थ क्या बताया मैंने? इलेक्ट्रिक करंट। आगे पीछे लिख सकते हैं, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होगी? एम्पियर, गिवन बाय ऑर्डिनरी एम्पियर। फिफ्थ मैंने बताया क्या बताया? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है? आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, दैट इज SI सिस्टम मोल। सिक्स्थ वन मैंने बताया क्या? टेम्परेचर। अरे टेम्परेचर तो आपका कॉमन है। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? आप सभी को पता है, केल्विन। एंड लास्ट वन जो हम लोग अरे नहीं डिग्री सेल्सियस नहीं, केल्विन SI सिस्टम के अंदर। और सेवन जो होती है वो क्या होती है? दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? दैट इज कॉल्ड कैंडेला। CD से डिनोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैंडेला। सो देयर आर these are the 7 fundamental or basic quantities. With the help of all these quantities we can derive all other quantities. हम इन सातों क्वांटिटीज की हेल्प से सारी क्वांटिटीज को क्या कर सकते हैं? डिराइव कर सकते हैं। इसलिए हमने फंडामेंटल यूनिट को जाना। तो डिराइव करने के लिए हमें हमारा जो मेन मोटिव है, मेन पर्पस है, वो क्या फाइंड आउट करना है? दैट इज कॉल्ड देयर डायमेंशनल फॉर्मूला। दैट इज कॉल्ड देयर डायमेंशनल फॉर्मूला।
मैं बात करता हूँ क्वांटिटी वॉल्यूम की, अगर मैं वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होगी, एक उसकी लेंथ होगी, एक उसकी विड्थ होगी, उसका ब्रेथ लेंथ और एक उसकी हाइट होगी। तो लेंथ, विड्थ, हाइट ये तीनों क्या हैं, ये उसकी डायमेंशंस हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, डायमेंशंस फॉर्मूलाज आर ऑलवेज रिटन इनटू, कैसे लिखेंगे, इस ब्रैकेट में लिखेंगे, नो, इस ब्रैकेट में लिखेंगे, नो, these are always written into square bracket, और ब्रैकेट्स को फिजिक्स में क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस। डायमेंशंस फॉर्मूले आर ऑलवेज रिटन इन स्क्वायर पैरेंथेसिस। स्टूडेंट्स, अभी एक बच्चे का मैसेज आया था कि आवाज 2 बार सुनाई दे रही है ना, ऐसा ही हो रहा है ना। ये जो मुस्कान और हर्ष है, इन बच्चों ने अपने माइक ऑन कर रखे हैं, ऑफ करिए उनको। अगर आपको डाउट लेना है तो ही ऑन करिए। हर्ष और पीयूष, आप भी ऑफ करो अपने माइक। हर्ष और पीयूष, उससे क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं तो आपका फोन बोलता है, ठीक है, और आपका फोन जो बोलेगा तो आपका माइक सुनेगा और फिर हमें सुनेगा, वो डबल हो जाता है। आपको जो माइक ऑफ करिए। एक बार आपको वीडियो को देखना हो गया। बच्चे जब अननेसेसरी माइक ऑन रखते हैं, आपको ऑन करो। हाँ जी बच्चों, बेटा आपको वॉइस क्लियर है? स्टूडेंट्स, टेल मी प्लीज, राइट डाउन द मैसेज, योर वॉइस इज क्लियर? Student, voice is clear or not? Write down the message. Voice नहीं जा रही बच्चों के पास। हाँ भाई, मेरे को तो लगता है वॉइस जा ही नहीं रही। इन्होंने अपने माइक ऑफ कर रखे हैं तो वो नहीं बोल रहे। नहीं, अब लिख तो सकते हो। लिख नहीं रहे। चैट में आएगा, चैट में आएगा, यहाँ लिख रहे हैं सर। अच्छा, तो चैट को तो ओपन रखो ना, अटेंडेंस नहीं कर सकती। यस सर, ये ओके ओके ओके। इफ्शा, आरजू, मुस्कान, शीरत, संयम, ओके। एक सेकंड, इसको एक सेकंड वेट करो बच्चों, एक सेकंड। हाँ जी, एक बार देखना आप। ये क्लिक किया, म्यूट ऑल पार्टिसिपेंट्स, म्यूट कर दिया। अब ठीक है? नाउ इज इट ओके? हेलो, ओके। अब पढ़ा, जब बच्चों से बात करनी है ना, पूछना हो तो इसको क्लिक कर देना। ओके, जब पूछो तो इसको क्लिक कर लेना। ये तो मैसेज देख लेना। चैट को ऑन रखा दो, चैट पे एक बार मैसेज में डाल देना। नाउ प्लीज करो। हाँ जी बेटा, लिसन। अब तक हमने क्या बताया, जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने बताया था फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग इनटू वेरी ब्रीफ वर्ड्स। बहुत ब्रीफिंग में बता रहा हूं मैं।
nothing is seen. Nothing is seen. बेटा तो दिखाई नहीं दे रहा स्टूडेंट्स, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? नथिंग इज सीन। हर्ष का मैसेज आया है, हर्ष के अलावा और बच्चों को दिखाई दे रहा है? पर मैसेज देखिए। यस 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 यस। तो हर्ष भाई आपके फोन में कोई दिक्कत है? आप जहां भी यूज कर रहे हैं। ओके डन। Okay, beta. Okay. Now listen. I am just okay, beta. Okay. Now listen. I have told you right now. Just brief introduction में बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि physical quantities क्या होती हैं? These are those quantities which can be defined, which can be expressed, which can be measured, and which has some physical significance. Are called physical quantities. फिर हमने बताया physical quantities कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की होती हैं। वैसे बेसिकली जनरली टू टाइप्स की होती हैं, लेकिन कई जगह हम इसको स्टडी करते हैं थ्री टाइप्स की। तो मैंने बताया फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर नॉट गोइंग टू बी यूज्ड ऑन ए लार्ज स्केल। वो मैंने आपको बताया था कि क्या होती हैं, एक प्लेन एंगल के केस में होती है और एक सॉलिड एंगल के केस में होती है, जिनकी यूनिट्स क्या होती हैं? रेडियन एंड स्टीरेडियन। नाउ हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। दीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच आर फंडामेंटल इन नेचर। फिर हमने बताया दीज आर आल्सो कॉल्ड बेसिक क्वांटिटीज। फिर हमने डिस्कस किया फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट होगी that are called fundamental units. The fundamental units are those units which are derived with the help of fundamental quantities. उसके बाद हमने डिस्कस किया derived quantities के बारे में। derived quantities क्या होती हैं? These are those quantities which are derived with the help of fundamental quantities are called derived quantities. फिर हमने डिस्कस किया derived units के बारे में। derived units क्या होती हैं? These are those units which are derived with the help of derived quantities are called derived units. For example, work है, pressure है, और you can say area है, और आप बता सकते हो density है। ये सभी क्या हैं? impulse है। ये सभी क्या है? ये सभी आपकी derived quantities हैं। वर्क है, एनर्जी है, आपकी पावर है, आपकी वॉल्यूम है, आपका मोमेंटम है, आपका एनर्जी है, हीट एनर्जी है, स्पेसिफिक हीट एनर्जी है, लेटेंट हीट है। ये सभी क्या है? आपकी derived quantities। कैसे derived quantities हैं? Because these are derived with the help of फंडामेंटल क्वांटिटीज। अभी हम आपको डिराइव करके दिखाएंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव्ड क्वांटिटीज कैसे डिराइव की जाती हैं। और ओनली देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन नेचर विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन डिराइव ऑल अदर क्वांटिटीज। वो फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 कौन सी बताई थी हमने? फर्स्ट ऑफ ऑल बताई थी लेंथ, फिर बताया था मास, फिर बताया था टाइम, फिर बताया था इलेक्ट्रिक करंट, फिर बताया था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर बताया था टेम्परेचर, एंड लास्ट में हमने क्या बताया था? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अगले हमने यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया था। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। मास के एसआई सिस्टम में किलोग्राम, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन। ओके बेटा, एवरीथिंग इज 100% वर्किंग। वेरी गुड मोहित। वीडियो वॉइस ऑल। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हां जी, फिर हमने बताया था टेम्परेचर की केल्विन, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर डिस्कवर्ड बाय ऑर्डिनरी एम्पियर, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल। I think right now we will derive
will derive dimensions formulae. Dimensions formulae मैंने आपको बताया dimensions क्या होती हैं. For example, अगर मैंने वॉल्यूम का जिक्र किया था जस्ट थोड़ा सा पहले, तो वॉल्यूम के अंदर डायमेंशन की मैंने बात बताई थी. एक होता है the formula of volume is length into breadth into height, या length into width into height. तो ये क्या है? These are the dimensions of this physical quantity. Physical क्यों बोला? अरे भाई ये derived quantity है, और derived quantity is itself the part of physical quantity. हमारे भी तो आर्म्स हैं, ये देखो हमारे भी तो 2 आर्म्स हैं, आप सभी को दिखाई दे रही हैं 2 आर्म्स. हाँ जी, तो आर्म्स ऐसे हर चीज की होती है, मीन्स भुजाएं. जैसे कि आप आजकल देखते हो रामायण, उसके अंदर जो रावण था उसके भी कितने हेड्स थे? 10 हेड्स थे. अरे बस नॉर्मली 10 नहीं होते, तो वो क्या थी? उसकी डायमेंशंस थी. हेड्स की डायमेंशंस थी 10 हेड्स थी. अरे बस सिमिलरली डायमेंशंस का मतलब होता है भुजाएं. अगर आपने शेरा वाली माता वगैरह को देखा होगा तो 8 से 10 हाथ होते हैं, तो वो क्या है? उनकी डायमेंशंस. Is it clear to everyone? Okay, thank you very much. Now यहाँ से हम डिस्कस करेंगे कि डायमेंशंस फॉर्मूले क्या होते हैं. डायमेंशंस फॉर्मूले क्या होते हैं? देखो जरा, see on the board बेटा, डायमेंशंस फॉर्मूले. इसके अंदर हमने बताया डायमेंशंस फॉर्मूले के अंदर क्या. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हम क्या यूज करेंगे? डायमेंशंस फॉर्मूले कैसे लिखे जाएंगे? सिंपल ब्रैकेट, एक ये ब्रैकेट और एक ये ब्रैकेट. ब्रैकेट्स को फिजिक्स में बोलते हैं पैरेंथेसिस. क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस. स्पेलिंग देखो, PARANTHESIS. And in physics, in case of dimension formulae, we use square parenthesis. इनको हम यूज नहीं करते. मतलब मेरे जितने भी डायमेंशंस फॉर्मूले होंगे वो कहाँ यूज होंगे? स्क्वायर पैरेंथेसिस के अंदर लिखे जाएंगे. क्लियर? तो अब यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं. क्या क्या हमें लिखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें लिखना है सीरियल नंबर. सीरियल नंबर क्या है? लाइक दैट. यहाँ सीरियल नंबर मतलब पहला डायमेंशन फॉर्मूला. यहाँ से क्या जाएगा? उस क्वांटिटी का नेम. क्वांटिटी का नेम. यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? उस क्वांटिटी का फॉर्मूला. यहाँ क्या आएगा? उस क्वांटिटी की यूनिट्स. और यहाँ क्या आएगा? उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला. Hope so it is visible to everyone. यहाँ क्या आएगा? उस क्वांटिटी का डायमेंशंस फॉर्मूला. Is it clear to everyone? हाँ जी. Now see on the board. जो फर्स्ट सीरियल नंबर है, अगर मैं बात करता हूँ क्वांटिटी मास. मास इज also a physical quantity. मास अगर फॉर्मूला नहीं होता तो वहाँ क्या लगाएंगे? डैश. यूनिट मास की होती है, वही यूनिट कौन सी लिखनी है हमें? एसआई सिस्टम में लिखनी है. मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम. क्या होती है? किलोग्राम. और डायमेंशन फॉर्मूला मास को क्या लिखेंगे? m. Is it clear? No, wrong. It is not clear because हमने बताया बेसिक क्वांटिटी 7 होती हैं, उनमें से भी ज्यादा से ज्यादा जो हम यूज करते हैं मोस्ट बेसिक वो 3 होती हैं. कौन कौन सी? लेंथ, मास एंड टाइम. और कि कोई भी क्वांटिटीज अगर एब्सेंट है, इट इज नॉट गिवन, तो उसकी पावर क्या लिखते हैं? 0. क्या लिखते हैं? 0. बिकॉज मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा किसी की पावर 0 क्या होता है? 1. तो यहाँ से क्या लिखेंगे? स्क्वायर पैरेंथेसिस m की पावर 1, l की पावर 0, p की पावर 0. 1 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता.
That is your correct dimensional formula of the physical quantity. Not visible. हाँ जी बच्चों, अब बताओ. Hope so. It is visible to everyone. Not visible. अब दिखाई दे रहा है बच्चों. Not visible. How can it be possible? अब बताइए. Not clear sir. अब बताइए. Is it visible to everyone? Is it visible to everyone? हाँ जी बच्चों, सुनाई दे रहा है? Is it clear? Is it clear to everyone? Is it clear? Are you getting my point? Is it audible to everyone? Okay, I am doing arrangement. Just wait for 1 minute. Just wait. Is it clear? आप दे रहे सुनाई? अरे मैसेज करिए बच्चों. आप सुनाई दे रही है? Okay, okay, okay. Goro, yes. Sigal, yes. Arju, yes. Iksha, yes. Everybody watch? Okay, thank you. Now see on the board again. सबको दिखाई दे रहा है? अब बताओ. Video is not going to be blur. अब बताना जरा. हाँ जी. Is it visible to everyone? Okay, अब बताना. अब ठीक है? हाँ जी, अब ठीक है? अब सही दिखाई दे रही है वीडियो? अब हाँ जी, now it is clear. अरे बच्चों, now it is clear. अरे नहीं, wait, just wait. Everything is fine now. सबको दिखाई दे रही है? Just wait. Just wait. हाँ जी बेटा, are you getting now? Is it audible to everyone? Okay, everyone is voting. Everyone is getting? Is it audible to everyone? Now visible. Okay, Sirat. Okay. Now we will discuss. We will proceed these dimensions formulae in next class. Okay, students. We will proceed these dimensions formulae in tomorrow classes. Now your class is of English, I think. Navita is going to take your classes. Now today's English class. Now it is your English class.
ओके बेटा ओके हाँ ये जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। ओके बेटा ओके हर्ष ओके बोलो ओके मुस्कान अभी बताएंगे बुक के बारे में डोंट वरी जस्ट लिसन बुक के बारे में बताएंगे अभी बाद में नाउ Navita ma'am is taking your classes we will proceed this topic